ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پچھلے 24 گھنٹے سے سب سے زیادہ تذکرہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ہر خبر میں پاکستان کا نام لکھا جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں باضابطہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس بات کا اعتراف امریکہ نے کر لیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر لیا ہے۔ ایران کی طرف سے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن ایسے اشارے ضرور مل رہے ہیں۔ جس طرح ایران کی طرف سے لگاتار پاکستان کو سہولتیں دی جا رہی ہے، اس سے صاف ہو گیا ہے کہ سچ میں پاکستان ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے علاوہ اس میں مصر کا بھی نام ہے، ترکی کا بھی نام ہے، لیکن سب سے زیادہ تذکرہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ادھر جیسے ہی میڈیا میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے، بھارت میں اپوزیشن پارٹیوں کا جو احتجاج ہے اور زیادہ بڑھ گیا ہے، سرکار کی جو تنقید ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور مودی سرکار سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو دہشت گردوں کا گڑھ ہے، جس ملک کی پہچان ایک آتنکوادی ملک کے طور پر ہے، عاصم منیر جو پاکستان کا آرمی چیف ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک شخص ہے۔ وہ سب پیسفل کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ثالثی کا فریضہ نبھا رہے ہیں، اور بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت کا اس میں نام کیوں نہیں ہے؟ ایجپٹ کا نام ہے، ترکی کا نام ہے، لیکن بھارت کی کوئی ویلو نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ، جبکہ اس جنگ سے پہلے بھارت اور ایران کے درمیان زیادہ اچھے تعلقات تھے، بجائے اس کے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان زیادہ اچھے تعلقات ہو، یا اسی طرح بھارت اور امریکہ کے اچھے تعلقات رہے ہیں، بجائے اس کے مانا جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن جنگ جیسے ہی شروع ہوتی ہے، ایران لگاتار پاکستان کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے پاکستان کے لیے کھول رکھا ہے، اور اب پاکستان دونوں دیشوں میں ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں لگاتار یہی خبر چل رہی ہے۔ حالانکہ ایران کی میڈیا نے اس خبر کو غلط قرار دیا ہے، اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان میں ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے، بلکہ ایران کی طرف سے تو لگاتار یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہی ہے، اور اس طرح کی جتنی خبریں ہیں وہ تمام خبریں فیک ہے۔ الجزیرہ نے بھی یہی خبر لگائی ہے، ہیڈ لائن لگائی ہے کہ ایران نے ڈائیلاگ اور مذاکرات کی خبر کو فیک بتایا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے، امریکی صدر کی طرف سے پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ڈائیلاگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور 15 نکات پر، 15 پوائنٹ پر بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت پوزیٹیو رخ میں جا رہی ہے، اور کچھ پوائنٹس پر ایران نے ایگری کر لیا ہے، کچھ پوائنٹس پر امریکہ نے بھی ایگری کر لیا ہے۔ اور جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک ٹویٹ پوسٹ کیا ہے اپنے ہینڈل سے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سچ میں پاکستان ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے نرم رخ اختیار کیا جا رہا ہے، اور خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات چیت کی۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت کی۔ پھر خبر سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے۔ اس سے صاف لگ رہا ہے، پھر پاکستان کے پرائم منسٹر کا اور پرائم منسٹر آفس سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے دونوں ملکوں کے سربراہوں سے، ذمہ داروں سے بات چیت کی، اور کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرانے کی، ثالثی کا فریضہ ادا کرنے کی۔ اور اگر یہ بات سچ ہے تو یقینی طور پر پاکستان ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ایک ٹویٹ کے اسکرین شاٹ کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیا ہے، اور شہباز شریف کا جو ٹویٹ ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ سچ میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شہباز شریف کے ٹویٹ کا متن ہے: پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور ان کی مکمل حمایت کرتا ہے، تاکہ خطے اور اس سے باہر امن اور استحکام قائم ہو سکے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے مشروط پاکستان اس بات کے لیے تیار اور پرعزم ہے کہ بامعنی اور حتمی مذاکرات کی میزبانی کرے، اس کو ہوسٹ کرے، تاکہ جاری تنازع کے جامع حل تک
पहुंचा जा सके। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये जो बयान है, इससे साफ लग रहा है कि सच में पाकिस्तान सालिसी का फरीज़ा अदा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर कह दिया है, इनकी पोस्ट को ट्वीट कर दिया है। ईरान की तरफ से भी इशारा मिला है, ईरान की तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया है जिससे साफ पता चल रहा है कि ईरान भी पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है और ईरान भी चाहता है कि अगर कोई मुल्क सालिसी का किरदार अदा करे, किसी मुल्क में मुज़ाकरात हो, तो मुल्क पाकिस्तान ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। 3 दिन पहले की बात है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे वालिद सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान को अपने वालिद का पसंदीदा मुल्क करार दिया सैयद मुश्तबा खामनेई ने, और ये बयान उन्होंने ईद के दिन, नौरोज़ के दिन जारी किया, जिससे साफ मैसेज गया कि पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा है, ईरान के लीडर्स को भरोसा है। और नए सुप्रीम लीडर ने अपनी हुकूमत को, अफसरान को ये इशारा भी दे दिया, बल्कि उनको हिदायत दे दी कि आप पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हो। उधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जब ओपन किया गया तो शुरू में सिर्फ 3 मुल्कों के लिए ओपन किया गया था, और उन 3 मुल्कों में पहला मुल्क पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की। और इस वक्त अमेरिका के साथ डायलॉग में पाकिस्तान के अलावा जिस मुल्क का नाम आ रहा है वो मुल्क तुर्की है। तुर्की और ईरान में अच्छे रिश्ते हैं। तुर्की में एक दिन मिसाइल भी चला गया था, एक दिन ड्रोन से हमला हुआ था, और जब तुर्की ने सख्त एहतजाज किया तो ईरान ने कहा कि तुर्की की सरजमीन पर होने वाला ड्रोन हमला या मिसाइल हमला ईरान ने नहीं किया है, बल्कि हमला खुद इसराइल ने किया है, और इसराइल की साजिश है, इसराइल का एजेंडा है ईरान के अलाइज को, ईरान के दोस्तों को ईरान से दूर करने का। उस पर हमला नहीं किया है। उमूमन जब 2 मुल्कों के दरमियान में लड़ाई होती है और वो लड़ाई अमेरिका और किसी और मुल्क के बीच में हो, तो सालिसी का किरदार निभाने के लिए कतर बहुत ज़्यादा मशहूर है। अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान 20 सालों तक जंग चलती रही, और उन दोनों मुल्कों की लड़ाई में सालिसी का किरदार कतर ने अदा किया। कतर ने तालिबान का दफ्तर अपने यहाँ खोला। इसी तरह भी हमास और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी, तो उस जंग में भी सालिसी का किरदार कतर नहीं निभाया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी कतर ही सालिसी का फ़रीज़ा निभाता है, और भी कई अहम तरीन मामलों में कतर ने सालिसी का फ़रीज़ा निभाया है। अभी भी दुनिया को यही लग रहा था कि इस जंग में, यानी अमेरिका और ईरान की जंग में, कतर ही सालिसी का फ़रीज़ा निभाएगा, लेकिन ईरान को अरब देशों पर भरोसा नहीं रहा। पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच में कतर ने सालिसी का फ़रीज़ा नहीं निभाया, बल्कि GCC के ममालिक में ओमान पर ईरान को भरोसा है। अभी भी ओमान के साथ ईरान का अच्छा रिश्ता है, और ओमान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का हमेशा फ़रीज़ा निभाया है। ओमान की राजधानी मस्कत में बातचीत भी होती है ईरान के वफ़द की और अमरीकी वफ़द की। तो ओमान के अलावा किसी मुल्क पर GCC में या अरब में ईरान को भरोसा नहीं, इसलिए कतर पर भी ईरान को भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि कतर ने भी बाज़ाब्ता सामने आकर बयान जारी कर दिया है कि कतर मुज़ाकरात में शरीक नहीं है, कतर सालिसी का फ़रीज़ा नहीं अदा कर रहा है। कतर की तरफ से बाज़ाब्ता इसकी वजाहत कर दी गई है, और पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इस खबर को भी तकरीबन दुनिया भर की मीडिया ने कंफर्म कर दिया है। और पाकिस्तान के सालिसी का किरदार अदा करने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो कद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती जा रही है। और यही वजह है, जैसे ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, उसके कुछ ही देर बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया था, फ़ोन आया था, उनका फ़ोन मैंने रिसीव किया है, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है, और मशरिक़ वस्ता की जंग के बारे में बातचीत हुई है। मैंने अमेरिकी सदर से कहा है कि ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए वो कदम उठाए और बातचीत के ज़रिए मसले का हल हो, जंग बंद होनी चाहिए, यही सलूशन है, और अबनाए हुर्मुज़ खुल जाना चाहिए। ये बातचीत हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। इस बातचीत की भी तनकीद की जा रही है। उधर कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने इस पूरे मामले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति का अलमबरदार बन रहा है, उसकी इमेज अच्छी हो रही है, और भारत क्या कर रहा है, आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेट को। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए,
और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे, और ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है, और भारत वहां से पूरी तरह से नदारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। इस तरह का रद्द अमल और भी कई लोगों ने दिया है। खुद सुप्रिया श्रीनेट ने नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए उसको कोट करते हुए लिखा कि जब आपकी बातचीत हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो क्या आपने उनके सामने मुद्दा उठाया कि अमेरिका ने एक देश के सुप्रीम लीडर को कैसे कत्ल कर दिया जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है? आप किसी भी आज़ाद देश के लीडर को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं मार सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर का कैसे कत्ल कर दिया? और भी कई लोगों ने इसी तरह का सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर लगातार अब भारत की तनकीद हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत कहां खड़ा है। हालांकि खबर यह भी है कि इस वक्त दुनिया के 25-26 ममालिक ऐसे हैं जो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, पसे पर्दा डायलॉग चल रही है, और ईरान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं है, वो अमेरिका का साथ नहीं देने वाले हैं। ईरान भारत के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन कर दे, दूसरे देशों के लिए ओपन कर दे, और जिन मुल्कों से बातचीत हो रही है ईरान की, उन देशों में से कुछ के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ईरान ने खोल दिया है, लेकिन अभी तक भारत के लिए ईरान ने नहीं खोला है। ईरान में जो लोग रहते हैं या जो लोग ईरान की तर्जमानी मीडिया में आकर कर रहे हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। जैसे उनमें से एक सैयद आकिफ जैदी हैं, वो ईरान के कुम में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि अभी भी ईरान की सरकार ने भारत के लिए मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन नहीं किया है, और उसकी वजह यह है कि ईरान ने जो मुतालबा किया है भारत सरकार से, उस मुतालबे को भारत की सरकार पूरा नहीं कर रही है। ईरानी अवाम में भारत सरकार की इमेज अच्छी नहीं है, इसी वजह से अभी तक ईरान ने भारत को वो सहूलत नहीं दी है। उधर भारत सरकार को लग रहा है कि शायद आज नहीं तो कल अमेरिका के दबाव में, अमेरिका की कोशिशों से स्टेट ऑफ होर्मुज़ ओपन हो जाएगा, लेकिन अब फ्रांस को, जर्मनी को, ब्रिटेन को, जापान जैसे देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। अमेरिका को इस काबिल इन देशों ने नहीं समझा है कि वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन करा देगा, और इसीलिए इन देशों ने ईरान की बात को मानना शुरू कर दिया है, और ईरान अब इनमें से कुछ देशों के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन कर रहा है। इधर भारत में गैस की जो क्राइसिस है बढ़ती जा रही है, तेल की जो क्राइसिस है बढ़ती जा रही है। अब सोशल मीडिया पर खबरें सामने आ रही है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। उधर गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है, लोगों ने चूल्हा पर खाना बनाना शुरू कर दिया है, और ख़ुद देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने देश की पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कह दिया कि जो बहरान है, ये जो क्राइसिस है, लंबे अरसे तक जारी रहेगा, और आपको, देश के आवाम को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आसानी से मसला हल होने वाला नहीं है। उधर सीज़ फायर और जंगबंदी के लिए जो बातचीत चल रही है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि जल्द इस जंग का खात्मा होने वाला है या बहुत जल्द स्टेट ऑफ होर्मुज़ ओपन हो जाएगा। स्टेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिका ओपन करवा भी नहीं सकता है। अमेरिका ने कोशिश कर ली है और अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हो सका, और इसीलिए अमेरिका को अब डायलॉग का रास्ता अपनाना पड़ा है। कल की वीडियो में ज़मीर अब्बास जाफरी साहब ने तफसील से बताया था कि किस तरह स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास ईरान की तैयारी है, ईरान ने किस तरह वहाँ पर अपना मिसाइल सिटी बना रखा है, और कभी भी अमेरिका उसको तबाह नहीं कर सकता। उस इंटरव्यू को ज़रूर देखेगा, पूरी बात वहाँ पर समझ में आएगी। इसलिए ईरान को भी अपने ऊपर भरोसा है, और वो अमेरिका के सामने शर्त रख रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमारी शर्तों को मान लो, या नहीं भी शर्त मानो तो जस्ट आप हम पर हमला करना बंद कर दो, स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन कर दो, जंग बंदी हो जाएगी, और अमेरिका, इसराइल इस जंग से बाहर निकल जाएंगे। और ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ तो अब
तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ओपन ही नहीं होगा, बल्कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का निज़ाम कैसा होगा ईरान तय करेगा और ईरान $2 मिलियन टैक्स लेगा। इसका बाज़ाब्ता ईरान ऐलान कर चुका है। लेकिन उसके अलावा भी जो बातचीत हो रही है या अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 15 पॉइंट्स पर सीज़ फायर के लिए बातचीत हो रही है, तो उसमें अमेरिका से ज़्यादा शर्तें ईरान की तरफ से रखी जा रही है। ईरान की तरफ से पहली शर्त ये रखी जा रही है कि पूरे मशरिक़ वस्ता से अमेरिका को जाना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट के किसी भी देश में अमेरिका की फ़ौज नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त ईरान की तरफ से रखी जा रही है कि इस जंग में जितना भी नुकसान हुआ है ईरान का, अमेरिका उसका हर्जाना अदा करे। तीसरी शर्त ये रखी जा रही है कि अमेरिका पूरी दुनिया के सामने आकर के वादा करे कि वो कभी भी आइंदा ईरान पर हमला नहीं करेगा। चौथी शर्त ईरान की तरफ से ये रखी जा रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए माफ़ी मांगे और कहें कि उन्होंने ईरान पर हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करके गलत किया है और आइंदा अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा, किसी देश के साथ अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। ये बेसिक और बुनियादी शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई है और इसलिए अमेरिका के लिए इन शर्तों को मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत प्रोडक्टिव है, अच्छी हो रही है। और अब खबर है कि अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ये दोनों इस्लामाबाद का दौरा करने वाले हैं और उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी इस्लामाबाद आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर आज एक जहाज़ की वीडियो भी वायरल हुई। उस वीडियो के ज़रिए या उस तस्वीर के ज़रिए दावा किया गया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और उनके दूसरे रहनुमा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और डायलॉग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बाद में ट्विटर ने ही बताया कि जो वीडियो है प्लेन की, जहाज़ की, उसके इस्लामाबाद में लैंड होने की, ये 2023 की है, अभी की नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और ईरान के नुमाइंदे भी पहुंच चुके हैं, अमेरिकी नुमाइंदे भी पहुंच चुके हैं। उधर अब्बास अरागची का जो ताज़ा बयान सामने आया है उससे भी लग रहा है कि सच में डायलॉग का आगाज़ हो चुका है। अब्बास अरागची का ताज़ा बयान यह है कि ईरान एक मुस्बत और हतमी बातचीत के लिए तैयार है, यानी बातचीत हो, मुज़ाकरात हो तो हमेशा के लिए हो। पहले जिस तरह अमेरिका ने बार बार धोखा दिया उस तरह की बातचीत अब पॉसिबल नहीं है। तो ईरान ने भी पब्लिक प्लेस में आकर इशारा दे दिया है। अब भारत सरकार की जो तनकीद हो रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? भारत में जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी दबे लफ्ज़ों में तनकीद कर रहे हैं। जैसे कल राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का फरीज़ा निभा रहे हैं और भारत उसमें नहीं है। तो जो जर्नलिस्ट है वो भी दबे लफ्ज़ों में तनकीद कर रहे हैं। खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि उनका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि भारत इस पूरे मंजरनामा में आउट क्यों हैं, बाहर क्यों हैं, जबकि भारत को ही सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। भारत विश्व गुरु है, भारत का मकाम बड़ा है। पिछले दिनों सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ही जंग रुकवा सकते हैं और अब जब जंग रुकवाने की कोशिशें हो रही है तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नाम नहीं है। आखिर क्यों? क्या सुधीर चौधरी साहब आप इस सवाल का जवाब देंगे या आप अपने शो में बताएंगे कि क्यों अमेरिका ने और ईरान ने नरेंद्र मोदी साहब को, भारत को सीज़ फायर की कोशिशों में शामिल नहीं किया? क्यों ये जंगबंदी नहीं करवा रहे हैं? इसी तरह आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान सामने आया था कि भारत ही जंग रुकवा सकता है, मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में जो लड़ाई है उसका ख़ात्मा करवा सकता है। लेकिन कहीं पर भी भारत का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए मोहन भागवत साहब को, बीजेपी के नेताओं को और सुधीर चौधरी को। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। आखिर में आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है या फिर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आप उठा सकते हैं। जैसे मिला टाइम्स का कोई लाइव होगा तो जो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले चुके होंगे उनके सवाल को आसानी से लिया जा सकता है। उसके अलावा और भी कई सारे कंटेंट तक उनको ईजिली एक्सेस मिलेगा। इसी तरह अगर आप हमारी वेबसाइट पर आकर हमारी 299 की मेंबरशिप ले लेते हैं तो मिला टाइम्स के कॉन्क्लेव में या दूसरे प्रोग्राम में आपको फ्री एंट्री मिलेगी।